back to my channel. Since you guys are all aware that I recently had a trip to Sri Lanka, which was a 7 days long trip, and many of my friends and you guys have suggested me to make a video out of it. So that you guys can also plan better. So here it goes. I'm not going to share a lot of details about the trip. More or less, there's going to be itinerary based, and I'm just going to cover a couple of places that we personally visited. I'll also add a lot of things, like as in the places that we couldn't visit but which were very popular, in the description. Maybe you can have a look at that and you can also add that in your itinerary. But overall, the trip was a pretty decent one and also very cheap. So starting off with, we had taken a flight from Hyderabad to Colombo, and we had landed in Colombo somewhere around afternoon. That is around 1:30 p.m. And as soon as we landed, we had to pick up the SIM cards. We had to also take currency because we hadn't carried any currency with ourselves, because it was a little expensive for us. जहाँ से हम करना चाह रहे थे वो हमें 10,000 ज़्यादा पड़ रहे थे INR में. So we couldn't do anything but took a Neo card with us handy, and उसमें से हमने ATM में से विड्रॉ कर लिया वहाँ की करेंसी में, तो ज़्यादा नहीं कटे. So we have three international free ATMs in a quarter if I'm not wrong. श्रीलंका में सबसे ज़्यादा करेंसी चलती है. You don't have cards that easily available out there. So we started off from Colombo to Kandy, because we had again our returning flight was again from Colombo, so we had any which ways have to come back to Colombo. तो हमने सोचा था जब आएंगे तब एक्सप्लोर कर लेंगे कोलंबो. तो अभी हम लोग कैंडी की तरफ निकल चुके थे. तो कैंडी और कोलंबो के बीच में 3 घंटे का रास्ता है. As soon as we reached, we took a tuk-tuk is basically an auto, and this you can get it from an application called PickMe. PickMe is basically Uber of Sri Lanka, जिसमें you have bike, cabs, autos, also delivery. So grocery का भी हो जाता है, खाने का भी हो जाता है. It's more like Uber. तो just have that handy because वो बहुत काम आएगा आपकी ट्रिप में. So we had taken a tuk-tuk from Colombo airport to Kandy to our stay. So it was a 3 hours journey. We reached somewhere around 6:30ish इन कैंडी. एंड कैंडी में पहुँचते ही, क्योंकि वहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था और वो पूरी हिली रोड थी, हमें वी वर ऑल्सो वेरी टायर्ड, सो वी डिड नॉट गो एनी वेयर एंड वी जस्ट कॉल्ड इट नाइट. घर पे कुछ खाना मंगा लिया था, खाना खा के सो गए थे. द स्टे दैट वी स्टेड देयर, द स्टे दैट वी वर इन, it was a pretty decent stay at a very reasonable rate. So maybe you can check it out. I'll share all the details about the stay, the pricing, in the description box. You can just have a look at that. Then that was what we did on day 1. Day 2, we had started early and we had to explore Kandy. So Kandy में हम लोगों ने 3-4 जगह कवर करी. One was the botanical garden. We started with botanical garden. उसमें I think entrance fee was somewhere around 3,000 per head. This तो हम लोगों ने वहाँ पे बोटानिकल गार्डन में क्लोज टू 2-3 घंटे निकाल लिए. इट्स जस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एंड इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, सो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. उसके बाद वी हैड गॉन टू दिस टूथ रेलिक टेम्पल, बिकॉज श्रीलंका का मेजॉरिटी ऑफ फोक्स आर like believe in Buddhism. We had gone there and that's a very well known temple. तो वहाँ पर, though we did not really have a lot of background about why do they worship, what is the story behind it, it was a good peaceful place to be at. So we just stayed there for a couple of I think we stayed there for half an hour, or so. Also, one more thing, that when you're going to temples, especially the Buddhist temples, right, try to wear white, because वहाँ पर माना जाता है कि white is very auspicious, specifically when you're going to a temple. तो white पहन कर जाओ. That is the second place that we had visited. Then we had gone to this Kandy Lake and viewpoint. मतलब उधर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके. Actually उसका it is very beautiful, like this view out there is very beautiful in the evening when there's a sunset. So sunset is very beautiful there. But हमारा पूरा काम, almost like the places that we were exploring, were done until 2:30. So it does not make sense for us to wait until 7. तो हम लोग वापस आ गए. Also we had gone to this mall which is like CCM. वहाँ पर we went for actually having Sri Lankan food, but because the restaurant was closed, we had ended up having the normal जो food court वाला खाना होता है वही खा रहे थे. So that is after all of that we had come back home. We had a very beautiful scenic view from our own balcony, so we were okay कि हमें उतना कैंडी लेक में जाके उतना वेट नहीं करना है. तो हम वापस आकर घर पर ही बैठ गए. नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी फ्रॉम कैंडी टू एला.
Now we had booked this 1 month in prior. Usually this is available like एक महीना पहले. तो I'll share the link of the website जहाँ से हम लोगों ने बुक किया था, आप लोग वहाँ से कर सकते हो. This specific train ride is very very scenic. That is the only reason everybody opts for it. And it's a टूरिस्ट वाला एक पूरा प्रॉपर कंपार्टमेंट. जो हम जिधर थे ना वहाँ पे पूरे टूरिस्ट ही थे, और वो बहुत सस्ती भी है. आई थिंक INR में कुछ 200-300 रुपये पड़ेगा, तो ले लो. और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लिया था कैंडी टू एला, पर बीच में हमें जाना था अशोक वाटिका. तो हमें नीचे मतलब वी हैड टू गेट डाउन एट नुआरा एलिया अगर अशोक वाटिका आपको देखना है. तो एक्चुअली तो नुआरा एलिया से एला द सीनरी इज़ वे मोर beautiful, but we did not want to miss out on Ashok Vatika. Now just for people who do not know, Ashok Vatika is a religious temple kind of thing wherein it has a very significant value in Ramayana. Jidhar Sita Maiya was being captured by Ravan, so we wanted to see that. So because of that we had gotten down on Nuwara station, and वहाँ पर उतर कर हम लोग we took a cab, like the locals, we have many people out there, so we had taken cab from them only. It costed us close to 7,000 from I think Nuwara station to Ashok Vatika to Ella. तो हम लोगों ने now we were 2 people, I and my sister were traveling, so पूरा expenses split है. तो अगर आप per person travel करोगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. तो just keep that in mind if you can travel in a group. Even if you're traveling solo, try to make friends and try to travel so that आपके थोड़ा budget हो जाए. पर all in all it was a good one. लाइक मंदिर अच्छा था, बहुत छोटू सा था, अच्छा था, एंड इट वॉज़ वेरी पीसफुल. मंदिर से मेरे को एक ही चीज़ होती है कि वो मुझे एक शांति दे, जो मुझे दी. तो वहाँ पर मैंने आई थिंक वी ऑल्सो सॉ दिस हनुमान का फुटप्रिंट, तो वो भी था वहाँ पर. सो या वंस वी वर डन विद अशोक वाटिका, इट हार्डली टुक अस लाइक एन आवर और सो. फिर उसके बाद हमारे कैब ड्राइवर सजेस्टिंग, हम लोगों ने ऐसी बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई चाय अच्छी है की दुकान पे, वहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि नुआरा एलिया में चाय बहुत अच्छी मिलती है एंड श्रीलंका इज़ फेमस. तो उसका नुआरा एलिया का हम लोग को वो लेना था, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एन ऑप्शन टू स्टे देयर, सो वी थॉट मे बी ऑन द वे विल पिक इट अप. सो आवर कैब ड्राइवर वॉज वेरी स्वीट, ही लेट अस pick this tea, and in fact he only showed us a good place from where we got a lot of tea for our family and friends, and then we headed towards Ella. Now Ella, I think we reached somewhere around 5:36. 6 तक पहुंच चुके थे हम, और 6 को हम पहुंचते क्योंकि अब थक चुके थे, सुबह से ट्रैवल कर करके थक गए थे. तो हम लोगों ने सोचा कि अभी इसके बाद, क्योंकि ये पूरे एला कैंडी पूरे हिली एरियाज़ हैं ना, तो वहाँ पर रात के टाइमिंग पे इट इज़ वेरी स्कैरी. पीपल यूजुअली एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड लाइक बाई 8-9 9 को हम लोग निकलते ही नहीं थे, स्पेशली इन दीज हिली एरियाज. वहाँ पे उसमें कुछ रोड्स भी बंद हो जाते थे, शॉप्स बंद हो जाते, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. सो इफ़ यू वांट टू गो देन यू हैव ओनली द डे टाइम. तो हम लोगों के पास 1-1.5 घंटा था, तो हम लोग निकल के कुछ पहले लंच वंच किया. तो देर वॉज दिस कैफ़े कॉल्ड एज चिल कैफ़े विच हैड वेरी गुड फूड. I won't say it is reasonable, but frankly speaking we were not really happy with the food that we were getting. So इधर अच्छा खाना मिल रहा था तो we were like पैसे जा रहे हैं तो जाने दो, बट हम पेट भर के खाएंगे. तो या दैट इज़ देयर. देन उसके बाद हम लोग नॉर्मली ऐसे ही चल रहे थे, लाइक देयर इज़ अ लेन फुल ऑफ शॉप्स एंड ईटरीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो हम लोग पहुँचे कुछ 6-6:30 थे, तो हम लोग खाना खा के फिर यहाँ वहीं घूम रहे थे, देख रहे थे कुछ अगर फैमिली के लिए अगर शॉपिंग कर सकते तो कर लेते हैं. तो वो हुआ. फिर उसके बाद वी केम बैक होम. नाउ वी हैव ऑलरेडी टायर्ड, सो वी हैड टू नेक्स्ट डे प्लान हमारा ऐसा था कि एला घूम कर फिर हमको उड़े वाला के लिए निकलना है. तो इट वॉज़ गोइंग टू बी हेक्टिक. तो हम जल्दी घर आ गए, मतलब खाना वाना खा के शॉपिंग वॉपिंग करके जो छोटी मोटी चीज़ें वो लेकर घर आ गए. घर आने के बाद हम निकल सुबह अर्ली मॉर्निंग समवेयर अराउंड 8-9 ले लो, 9 तक हम निकले थे शायद. तो 9 को हम निकल कर टुक में वी हैड लाइक दिस लोकल टुकटुक्स, वहाँ पे सब आपको ऐसे अवेलेबल रहेंगे, यू जस्ट नीड टू बार्गेन वेल. तो ये बंदा मुझे मतलब दिस ऑटो ड्राइवर, द टुक ड्राइवर, ही टुक 4,000 for 2 people and he made us explore all the places. Like now the places that we had explored was Nine Arch Bridge, then there was Ravana Falls, Ravana Caves, what else, Tea Factory and the Spice Garden. All of these places we had explored. Now we had taken 4,000, no, not 4,000 actually, 7,000 for that. And हम लोगों को लगा ठीक है अब सब कंप्लीट करना था 12 बजे से पहले, क्योंकि फिर हमें यहाँ से उड़े वाला भी निकलना था फॉर सफारी. सो वी गॉट डन बाय ऑल ऑफ दिस. ये सब ख़त्म कर हम वापस चेकआउट किया हमने समवेयर अराउंड 1:32 PM. तो हम वहाँ से एला से गए हम उड़ेवाला. ना पीपल माइट ऑप्ट फॉर याला और उड़ेवाला. हमको मेजरली लोकल्स ने सजेस्ट किया था कि उड़ेवाला जाना, क्योंकि याला इज़ वेरी फेमस फॉर लेपर्ड्स, एंड लेपर्ड्स का
विजिबिलिटी इज़ नॉट दैट फ्रीक्वेंट। तो जो भी जा रहा था वो बोल रहा था कि 50% चांसेस, समझो 50-50% है, या तो आपको मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर है, एंड इट्स वेरी ओवर क्राउडेड। सो वी डिड नॉट वांट टू गो टू अ प्लेस लाइक दैट, एंड इट वाज आल्सो इनसाइड समवेयर, मतलब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था ये उड़ेवाला रास्ते में पड़ रहा था, तो हम लोगों ने उस हिसाब से उड़ेवाला लिया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी हैड चोजन उड़ेवाला। सो नाउ वी हैड लेफ्ट एला and we reached Udewala somewhere around afternoon, evening, I think 5-6 we reached. The Udewala hotel was, I mean, the stay was very decent. I think we stayed in Kuma Safari Lodge. The people were, the hosts were very, very sweet. And they also arranged safari for us. So everything was sorted. So हमारी next day morning, early morning 6 to 9 वाला जो slot होता है उसमें हम लोगों ने सफारी बुक की थी। तो अब वहाँ पर वो फॉरेस्ट एरिया, तो यू डो नॉट रियली हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, यू जस्ट हैव टू स्टे इन योर रूम, चिल। सो वंस वी रीच्ड उड़ेवाला, हम लोग पूरा फ्रेशन अप होके फिर वहाँ पर ही डिनर था हमारा। तो होस्ट हैड प्रोवाइडेड अस, वी हैड टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, एंड देन वी हैड डिनर देयर इटसेल्फ। बिकॉज वहाँ पर एज आई मेंशन ना कुछ आसपास है नहीं, तो यू हैव ओनली वन सोर्स, अब उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे होने के बाद सुबह सुबह हमने वहाँ से सफारी की। सफारी वॉज वेरी डिसेंट, वी सॉ एलिफेंट्स, वी सॉ मल्टीपल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वी हैड ऑल्सो सीन व्हाट एल्स, वी सी क्रोकोडाइल्स भी देखा, वो सब बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ पर घर पर आकर, मतलब स्टे पे आके हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर लिया और हम निकल गए मिरीसा के लिए। मिरीसा में मेन हमारा places that we wanted to visit was, one was majorly that we went for Mirisa was for nightlife, and one was ये 2-3 touristy spots है, which is like one was ये एक hill है, मतलब it's more not like a hill, it's a rock wherein you have coconut trees, okay, and it's a very viewpoint. People go there for clicking pictures, and the view out there is also very beautiful. So वंस वी रीच मिरीसा, मिरीसा हम दिन में ही पहुंच गए थे क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे ना वहाँ से। तो हम वहाँ पर 1-1:30-2 बजे तक पहुंच गए थे। चेक इन करके थोड़ा फ्रेश करके हम निकल गए थे, और वो सब वॉकेबल डिस्टेंस थे हमारे स्टे से। सो हम लोग गए थे ये रॉक वाले पे, कोकोनट हिल रॉक जो था, उधर हम लोगों ने थोड़ा अच्छा व्यू देखा, पिक्चर्स लिए। फिर वहाँ से हम चले गए मिरीसा बीच। अब मिरीसा बीच में इफ़ यू गाइज आर वांटिंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई सर्फिंग। सो सर्फिंग इज़ वेरी गुड देयर। वहाँ पर पीपल एक्चुअली कम टू मिरीसा जस्ट फॉर ट्राइंग सर्फिंग. So that is one, but since we were just there for a day, that did not make sense for us to actually go for surfing. तो हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर हम लोग बस चिल कर रहे थे, और वहाँ पर सरप्राइजिंगली हम, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट हम शायद ऑफ सीजन में गए, वहाँ पे लोग बहुत कम थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा प्लान था, मतलब लास्ट डे था इन श्रीलंका। सो वी हैड टू गो टू कोलंबो बिकॉज एक्सप्लोर कोलंबो नहीं हुआ था अब तक। और हम लोगों ने सोचा बीच में गाला करके एक जगह है, उसमें आर्किटेक्चर उसका बहुत सुंदर है, तो मतलब उसका एक फोर्ट है, उसका लाइट हाउस है, 2-3 चीज़ें हैं उधर जो बहुत सुंदर है। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन वहाँ पर उधर एक नेशनल हॉलीडे, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द डे व्हेन दे सेलिब्रेट मोर लाइक अ न्यू ईयर. इट वाज like I think some auspicious day there, so it was declared as a national holiday. So because of that we couldn't find cabs and tuk-tuks out there, especially on the applications. So we had reached out to our host and he helped us out. तो हम लोग को थोड़ा महंगा पड़ा, बट अब क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो फ्रॉम मिरीसा टू गाला for 1 hour, and from Gala again back to Colombo to our stay, it costed us somewhere around 18,000, which is too much. तो वी स्टार्टेड समवेयर अराउंड 11:15ish. हम लोग उधर से निकले। उधर निकलने के बाद हम लोग पहले गए गाला में, क्योंकि वो हॉलीडे है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी, तो वी कुडेंट स्टे देर फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। हमारा क्योंकि वहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, तो इट इज़ जस्ट अगेन अ व्यू पॉइंट, और पिक्चर्स के लिए वो जगह बहुत अच्छी है। सो आई थिंक इन आवर और समथिंग वी वर एबल टू कवर ऑल द प्लेसेस दैट वी हैड थॉट ऑफ। कोलंबो में हम मेरे ख्याल से पहुँचे 3-4 बजे, 3 या 4 बजे हम कुछ पहुँचे। वहाँ पर एक टेम्पल, वेरी ऑस्पिशियस टेम्पल, सो दैट टेम्पल वी हैड विजिटेड बिकॉज अगेन इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, और सब बोल रहे थे कि वहाँ पे जाना चाहिए। एंड वहाँ के जो बोर्डिंग्स है विच यूजुअली हैव एक्सप्लेनेशंस, दे वर अगेन इन लोकल लैंग्वेज, सो वी रियली कुड नॉट गेट आउट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एज वेल। सो दो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट वो एक वाइब होती है ना, मतलब एक शांति मिलती है। कोई भी मंदिर में जाओ, स्पिरिचुअल स्पेस में स्पेसिफिकली जाओ, तो वो हमें वहाँ पर आ रही थी। तो हम लोगों ने बहुत, we enjoyed it, though we did not understand a lot of things, but we enjoyed it. Then we had gone to this park which is like more like a picnic spot, and it is having a ocean view. तो
हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर चिल विल करे. इट्स मोर लाइक अ पिकनिक स्पॉट. तो वहाँ पर फैमिली भी आई हुई थी बिकॉज अगेन हॉलीडे है, तो सब आके अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के खेल रहे थे और वहाँ पे पतंग भी उड़ाई जा रही थी. सो इट इज़ फेमस फॉर दैट एज वेल. सो दैट इज़ देयर. देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे. वी वर प्लानिंग टू गो टू डच हॉस्पिटल बिकॉज दैट इज़ वन एरिया वेर इन यू हैव मल्टीपल शॉप्स. शॉपिंग के लिए बहुत सही है. पर अगेन उस दिन क्योंकि नेशनल हॉलीडे था वो भी बंद था, तो हम लोग गए थे जेम ब्यूरो इन कोलंबो. व्हाट ऑल वी हैड एक्सप्लोर्ड इज वी वन स्ट्रीट फूड जॉइंट जहाँ पर बहुत सही non-veg food milta. If you guys are non-veg lovers, please definitely check that out. Then we also had explored Independence Square. We had explored Victoria Park. Specifically, I would say वो बहुत ज़्यादा architecture in the man-made वाला side is very good. Whereas the other cities are more on the scenic side. तो ये वाला थोड़ा अलग था हमारे लिए. तो हम लोग जितना भी कवर कर पाए हम लोगों ने कवर किया इन दैट छोटू सा टाइम फ्रेम. फिर हम वापस आ गए. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी हैड अ फ्लाइट टू बैक टू हैदराबाद. Now, that was pretty much my itinerary that we had like for 5 or 6 days, or how many ever days we were there. But there are certain things I would want to tell you so that this might help you plan your trip better. The very first thing is the SIM card that you guys are going to go for is Dialog, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है. बाकी के जो SIM cards हैं वहाँ के दे आर नॉट दैट गुड विद द नेटवर्क. तो डायलॉग हम जहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे वो बहुत सही था. और वी टुक इट फ्रॉम द एयरपोर्ट ओनली. सो वी आर टेकन वन सिम. ऑल्सो दे ओनली गिव फिजिकल सिम्स. ई सिम्स आर वेरी रेयरली फाउंड. और जो आएगा वो आपको दूसरे नेटवर्क का आएगा. तो प्रिफर करो कि या तो आप टेकिंग अ फोन विच हैज़ डुअल सिम, और यू माइट हैव टू हैव योर सिम कार्ड हैंडी, लाइक मतलब कहीं और रखना पड़ेगा. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. Then second thing is for this visa, right? People usually say that कि तो हम जब जा रहे थे तब बहुत सारे चेंजेस हुए थे श्रीलंका के ट्रैवल के रूल्स में. तो हम लोगों ने क्या किया था, टू बी इन सेफ साइड वी आर एक्चुअली चेकड ऑनलाइन. तो हम लोग को लिखा हुआ था कि इंडियंस के लिए वीज़ा इज अगेन मैंडेटरी. बट व्हेन वी रीच्ड देयर वहाँ पे पता चला इंडियंस के लिए ज़रूरी नहीं है. यू कैन ट्रैवल विदाउट अ वीज़ा ऑल्सो बिकॉज दे डिड नॉट चेक आर वीज़ा एनी वे. But stating that even if worst case scenario, agar tomorrow if they are planning to change their rules, you have visa on arrival wala option. So just check before you go and double check if you can. Okay, दैट इज़ देयर. देन नियो का कार्ड जैसे मैंने पहले बताया था ना, अगर आपको करेंसी लेना है प्लीज़ कैश मत कैरी करो बाहर से क्योंकि वो आपको महंगा पड़ेगा. आई विल शेयर अ लिंक ऑफ दिस नियो ऐप दैट आई एम यूजिंग. उसका आपको डेबिट कार्ड मंगाना होगा, 200-300 रुपये लगेंगे INR में. उसका आपको कार्ड मिल जाएगा. वो कार्ड आप कहीं पर भी यूज़ करोगे तो आपको वहाँ से 3 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर क्वार्टर इज़ फ्री ATM विड्रॉल. तो आपको कैश कहीं कैरी करनी नहीं. और उसमें बेस्ट पार्ट इज देयर इज़ नो मार्कअप फी. यूजुअली आप जब ये ब्रोकर्स के साथ जाते हो ना तो वो लोग आपको एक एक्स्ट्रा फी चार्ज करते हैं विच यू विल सेव in case you're opting this. Pretty much what my experiences were. I think I pretty much covered everything. In case you have anything that you need my help with और कुछ पूछना है कुछ भी, तो मेरे social media handles anyway जो इस description में होंगे, तो just check that out. And also the people who have already visited Sri Lanka, please share your experiences. There might be places that I might have missed out on. Feel free to add that so that people who actually are planning, they can take the best out of it. So yeah, that's pretty much it. Thanks again for watching until here, and I hope you like it. Please share your feedback again in the comment section. I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.